to discuss electric field intensity due to a short dipole at any general point. कल हम लोगों ने पढ़ रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन एट एक्सियल पॉइंट, और आज किसी भी जनरल पॉइंट के लिए डिफाइन करेंगे. कंसीडर here this is an electric dipole AB forming with two charges minus q and plus q. Let P be its dipole moment vector P. Let a point P be situated at distance small r from O by making an angle theta with डाइपोल मोमेंट वेक्टर P एज shown. ये थीटा डाइपोल मोमेंट वेक्टर निगेटिव टू पॉजिटिव A टू B डायरेक्शन में होगा, और ये थीटा स्मॉल एंगल है जो ये लाइन OP फॉर्म कर रही है डाइपोल मोमेंट के साथ. इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर P को रिजॉल्व करें तो हम दो कंपोनेंट फाइंड करेंगे. वन P cos थीटा along OP, another one P sin theta perpendicular to OP. Electric field intensity at point P due to component P cos theta. P cos theta is along the OP. That is, if we consider component P cos theta, then P cos theta is along the OP, and therefore electric field intensity due to P cos theta at P, say it is E1, may be given as E1 equal to 2P cos theta upon 4 pi epsilon naught RQ. ऐसा इसलिए क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, उसका एक कंपोनेंट P cos थीटा वो एक्सियल लाइन पर है, और वो जो कंपोनेंट P cos थीटा है उसके कारण पॉइंट P पर ये फील्ड E1 है. तो फार्मूला होता है E1 एट एक्सियल पॉइंट पर 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ. इसी को कंसीडर किया है, लेकिन जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसका केवल एक कंपोनेंट P cos थीटा ही इस डायरेक्शन में है, इसलिए ये आ गया 2P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ along PD outward from B. In the same way, electric field intensity due to component of dipole moment vector P sin theta is given by E2 equal to P sin theta upon 4 pi epsilon naught RQ. क्यों? क्योंकि ये जो P sin थीटा है इसके लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, और इक्वेटोरियल के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ. इस फार्मूले को यूज करेंगे, लेकिन यहाँ जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है उसका एक कंपोनेंट यूज हो रहा है P sin थीटा. तो E2 will be equal to P sin theta upon 4 pi epsilon naught RQ. अब जो डायरेक्शन है वो E2 की इस डायरेक्शन में होगी, E1 की इस डायरेक्शन में होगी. एक एक्सियल लाइन पर है, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है. तो ये जो एंगल बन रहा होगा ये 90 डिग्री होगा. मीन्स E1 एंड E2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. If we calculate resultant, let E be the
resultant electric field intensity at P due to these two components or due to these two electric field intensities E1 and E2, then E equal to, using vector addition formula, E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos theta. But here E1 and E2 are perpendicular to each other, therefore being cos 90, ये 0 हो जाएगा. The net electric field will be equal to E1 square plus E2 square. On substituting the values of E1 and E2, we have E equal to under root E1 square 2p cos theta upon 4 pi epsilon naught r cube whole square plus p sin theta upon 4 pi epsilon naught r cube whole square. E equal to under root 4p square cos square theta upon 4 pi epsilon naught r cube whole square plus p square sin square theta upon 4 pi epsilon naught r cube whole square. यहाँ कॉमन कंसीडर करो, p स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होल स्क्वायर है तो ये कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, ये आ जाएगा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इनसाइड स्क्वायर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पावर 1/2. इसको सॉल्व करो तो ये p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पावर 1/2. This cos square theta plus sin square theta will be equal to 1. P by 4 pi epsilon naught r cube, it will be equal to 3 cos square theta plus 1 power 1/2. And this is the required expression for the electric field intensity at any general point due to a short dipole. In order to find the direction, पिछला जो हमने डायग्राम कंसीडर किया था, अगर उसको हम कंसीडर करें यहाँ फिर से, आप लोग अपने पहले डायग्राम को ही ऑब्जर्व करिए, क्योंकि मैंने इरेज कर रखा है इसलिए मुझे उसे रीड्रॉ करना होगा. तो अगर हम उस डायग्राम को रीड्रॉ करें तो हम फाइंड करते हैं कि दिस इज E1, दिस इज E2 and this one is resultant. This is the alpha. In order to find the direction of E, direction of E find करें तो ये कुछ ऐसा आएगा. ये direction of E equal to tan alpha. Tan alpha equal to perpendicular by base और b sin theta upon a plus b cos theta, ऐसा भी फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ tan alpha perpendicular by base, तो perpendicular by base ये आएगा d, ये p और ये c, तो ये हो जाएगा perpendicular means ed by base मतलब pd. ED means E2, PD means E1. वैल्यू पुट करें, tan अल्फा इक्वल टू E2 आ जाएगा P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इनटू अपॉन E1
E1 की वैल्यू होगी तो ये रेसिप्रोकेट होगी और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन 2p cos थीटा। कैंसिल p cos थीटा, p और p कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बचा रहेगा, p कैंसिल हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। ये हो जाएगा डायरेक्शन। इफ पॉइंट P lies on the axial line of dipole, then थीटा इक्वल टू 0। एक्सियल लाइन पर लाई करेगा तो जो थीटा हमने कंसीडर किया है वो 0 होगा, and cos 0 will be equal to 1. Therefore, E will be equal to P by 4 pi epsilon naught R cube 3 cos 0 cos square 0 plus sin 0 plus 1, ये आ जाएगा 1 पावर 1/2। E इक्वल टू P by 4 pi epsilon naught R cube 3 plus 1 power 1/2, it will be equal to 2P upon 4 pi epsilon naught R cube। ये जैसा हमारा प्रीवियस इक्वेशन आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट इक्वल टू 2P upon 4 pi epsilon naught R cube। एंगल tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan 0, tan 0 0, अल्फा इक्वल टू 0। तो जो एंगल होगा वो भी 0 होगा। केस 2, if point P lies on the equatorial line of the dipole, then theta equal to 90 डिग्री। थीटा 90 होगा। E इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1। cos 90 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हुआ, तो E इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। और डायरेक्शन मीन्स tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी, और tan में किसकी वैल्यू इंफिनिटी, तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट फील्ड है उसके लिए एंगल आ जाएगा 90 डिग्री।